Very good afternoon to all. As you know that today I am shooting this video for yourself to help you to understand one very important topic from the unit Accounting for Partnership. Dear student, as you know, till this date we have discussed accounting for fundamentals and we also discussed the concept of valuation of goodwill. आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप जो होती है इट इज गवर्न बाय एन एग्रीमेंट. एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट. समटाइम partner get this agreement in writing and sometimes they are doing partnership on the verbal agreement also, but some sort of agreement must be there, and in case there is any change in this agreement, right, agreement में change हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. और agreement में change कब होगा? when all the partners give their consent. उन्होंने कहा कि हाँ जी we want to make certain changes in the terms and condition among the partners, because it is an agreement that governs terms and conditions among the partners. So when all the partners agreed to change some of the terms and conditions of the partnership, now this stage we will say it is reconstitution of partnership. Because reconstitution क्यों बोलेंगे? Because old agreement comes to an end and new agreement will be formed. So जब तक पुराना एग्रीमेंट है, पुराना बिजनेस चल रहा है, पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से काम हो रहा है, तब तक रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ. रिकॉन्स्टिट्यूशन जब होगा जब आप पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में चेंज करोगे. अब सवाल ये आता है कौन कौन से चेंजेस पार्टनर्स कर सकते हैं एग्रीमेंट के अंदर. सो लेट्स सी. Reconstitution can be done. Reconstitution of partnership can be there. Number one. पहली सिचुएशन क्या है? In the first situation when all the partners they wanted to change their existing profit sharing ratio. We all know that in partnership partners are sharing profit in the agreed ratio. अगर किसी को उस पर ऑब्जेक्शन है, वो कहता है नहीं जी मुझे तो रेशियो चेंज करनी है, मैंने कैपिटल ज़्यादा लगाया मुझे ज़्यादा शेयर चाहिए, जिसका कैपिटल कम है उसे कम शेयर दे दीजिए, या मैं एक्टिव पार्टनर हूँ मेरी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, अनदर वन इज स्लीपिंग पार्टनर उसका प्रॉफिट शेयर कम होना चाहिए. वट एवर द केस इज, इफ ऑल द पार्टनर्स आर एग्रीड तो देयर कैन बी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एंड व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल चेंज, so old agreement comes to an end. So the first case is when there is change in profit sharing ratio among existing partners. अगर कोई एक पार्टनर कहता है, ए कहता है, ए सेड ए एंड बी एंड सी, थ्री पार्टनर्स आर देयर. आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. ए बी सी दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली 1:1:1. ए इन्वेस्टेड ₹80,000. B invested 60,000. C invested 60,000. So, keeping in mind the capital invested, A has contributed more capital than B and C, and A objected that why I am having the equal share. I want to have more share in the profit. तो ए ये ऑब्जेक्शन लगा सकता है.
तो क्या एक ही ऑब्जेक्शन पे हम पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे? आंसर इज नो. पार्टनरशिप reconstitute means change in partnership deed can only be possible when all the three partners agree to it. Only एक के ऑब्जेक्शन करने से पुराना एग्रीमेंट खत्म करके हम उसके मुताबिक प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करेंगे. जब तक तीनों पार्टनर इस बात पे एग्रीड नहीं होंगे कि हाँ जी एक का पॉइंट वैलिड है, हम प्रॉफिट शेयरिंग को ऑल्टर कर लेते हैं, तब तक पार्टनरशिप में जो हम ओल्ड एग्रीमेंट के साथ ही चलेंगे. जब तीनों पार्टनर एग्री होकर उसे चेंज करते हैं तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. अनदर केस इन दिस इज when new partner admitted in partnership. When new partner admitted in partnership. अब नया पार्टनर पार्टनरशिप में आ सकता है? So answer is yes. But when yes, when all the partners are agreed to it. ठीक है, अगर x and y are two partners and x want to admit his son C into partnership, but Y objected. Now in this example you can see there are two partners x and y, and only x want to admit his son C into the partnership business, and but Y objected कि नहीं मेरी तरफ से तो कोई रजामंदी नहीं है. तो क्या हम C को एज अ पार्टनर एडमिट कर सकते हैं? आंसर है नो. क्योंकि when any partner admitted into the partnership, old agreement among the partners will come to an end and a new partnership forms will be, a new agreement has to be drafted. और अगर x and y दोनों agreed होते हैं then only C can be admitted, and when C will be admitted into the partnership, old agreement comes to an end and new partnership agreement will be drafted. तो जब दोनों पार्टनर एग्री करके नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो वो एक केस है जहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है. थर्ड केस इज when any partner retire from partnership. When any existing partner retire from the partnership. जैसे बेटा कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म करता है, हमें पता है पार्टनरशिप डिफरेंट तरह की होती है. पार्टनरशिप एट विल भी होती है, पार्टनरशिप बाय नोटिस भी होती है. तो अगर कोई पार्टनर एक समय के बाद पार्टनरशिप में कंटिन्यू नहीं करना चाहता है एंड ही वांटेड टू लीव द पार्टनरशिप फर्म, सो ही कैन डू सो बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स कि नाउ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू माय पार्टनरशिप विद द फर्म, काइंडली क्लियर ऑल माय ड्यूज एंड आई वांट टू रिटायर. अब जब वो रिटायर होंगे तो पुराना एग्रीमेंट फिर ख़त्म करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज वो जो पुराना एग्रीमेंट था वो उसके साथ भी था. ऑल द थ्री पार्टनर्स वर टुगेदर. अब अगर एक पार्टनर छोड़कर जा रहा है तो रिमेनिंग टू विल कंटिन्यू द बिजनेस. तो नया एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना पड़ेगा रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ. तो दैट इज अनदर केस व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. एंड द लास्ट केस इज डेथ ऑफ अ पार्टनर. When
any partner die. As we know that death is a natural phenomena or it may happen to anyone. So due to this thing, if any partner left the world, so अब वो तो नहीं रहा, तो हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? The old agreement comes to an end and we need to frame a new agreement, and that's why again there is a need of reconstitution of partnership. एक चीज़ और बेटा, रिटायरमेंट हमेशा प्लान्ड होती है, मतलब जब कभी कोई इंसान रिटायरमेंट लेता है ना, तो उसको पहले से ही पता होता है कि नाउ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू माय रिलेशनशिप विद द पार्टनरशिप, सो आई एम गोइंग टू रिटायर ऑन दिस डेट, काइंडली क्लियर ऑल माय ड्यूज. बट डेथ इज अ नेचुरल फिनोमिना, तो इट मे हैपन एट एनी टाइम. तो यू कैन सी कि जो हमारा प्रेजेंट टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये कब कब हो सकता है. तो दीज आर द 4 केसेस जब हमें पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत पड़ेगी. और अगर बेटा पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब याद रखनी है ये लाइन, ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड. ओनली बेटा एग्रीमेंट खत्म हुआ है, पुराना वाला बिजनेस वही है. अब अगर हमारी फर्म स्टेशनरी का काम कर रही थी, बिजनेस बंद नहीं हुआ है, सिर्फ जो एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में था हमने उसको ख़त्म कर दिया, पुराने वाले को ख़त्म कर दिया और उसकी जगह हमने नया एग्रीमेंट बना लिया. अब देखिए जब पार्टनर, ये 4 सिचुएशंस हमारे पास आएंगी, है ना, तो इस केस में हमें पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करना है. अब इस रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, 2 तरह की पार्टीज निकल कर आएंगी. एक पार्टी जिसको न्यू एग्रीमेंट से फ़ायदा होगा और एक पार्टी जिसे पुराने एग्रीमेंट के जाने के कारण से नुकसान होगा. तो इस रिकॉन्स्टिट्यूशन के कारण से हमारे पार्टनर्स जो हैं वो 2 कैटेगरी में बट जाएंगे. एक को हम बोलेंगे गेनिंग पार्टनर, क्योंकि नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट आ रहा है और इस नए एग्रीमेंट के कारण से जिसको फ़ायदा हुआ है वो पार्टनर कहलाएगा गेनिंग पार्टनर. और जिसका नुकसान हुआ है ना, क्योंकि न्यू एग्रीमेंट के कारण से हो सकता है किसी का नुकसान भी हो, तो जिसको नुकसान होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. तो लेट अस अंडरस्टैंड दीज 2 कॉन्सेप्ट. अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको और बोली थी कि आज का चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये जो मैंने आपके पास कंडीशंस लिखी हैं ये आपकी बुक के 4 चैप्टर्स हैं, राइट. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप when there is a change in profit sharing ratio among existing partner, reconstitution of partnership, admission of a partner, reconstitution of a partnership, retirement of a partner and reconstitution of a partnership in case of death of a partner. ये चारों जो चैप्टर्स हैं ये कोरिलेटेड है. इन चैप्टर्स को इजी वे में करने का जो तरीका है वो ये है कि हम उन 8 स्टेप्स को समझें जब पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है. वो कौन से 8 स्टेप्स हैं, और ये 8 स्टेप जो हैं वो केस 1 में भी एप्लीकेबल है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, विद लिटल वेरिएशन. वेरिएशन क्यों, क्योंकि सिचुएशन अलग है ना बेटा. एडमिशन के केस में अलग सिचुएशन है, प्रॉफिट शेयरिंग की अलग है, रिटायरमेंट की अलग है, डेथ की अलग है. तो थोड़ी वेरिएशंस के साथ ये 8 स्टेप्स में ये जो क्वेश्चन है ये सम अप हो जाता है. So let us understand these 8 steps one by one. So dear student, we are going to discuss about these 8 steps which are required to be followed as and when there is reconstitution of partnership. अब reconstitution change in profit sharing से हो, admission of any partner से हो, retirement of any partner हो या death of any partner हो, ये जो स्टेप्स हैं ये हमने ट्रीट करने होते हैं जब यहाँ पर पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है. लेट अस सी दी स्टेप 1 by 1. तो हमने लिखा है स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स एट द टाइम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. तो वो केस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. दीज वी हैव टू डू, राइट. ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप विच वी नीड, और बेटा ये जो स्टेप्स मैंने लिखे हैं इनका सीक्वेंस सेम रखना है, राइट. ये आप लगा लीजिए एक तरह की चेकलिस्ट है. चेकलिस्ट मतलब
आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, मैंने स्टेप 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 चेक करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, 7 करना है, 8 करना है। किसी क्वेश्चन में हो सकता है क्वेश्चन स्टेप 7 ना रिक्वायर्ड हो सकता है किसी स्टेप में 3 ना रिक्वायर्ड हो, लेकिन दिस चेकलिस्ट शुड बी फिटेड इन आवर माइंड व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। इससे हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है कि हमें मालूम है व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू। तो फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, जैसे मैंने कहा, 2 ग्रुप ऑफ पार्टनर्स बन जाते हैं, वन who is gaining and other who is sacrificing. So we'll find out their ratio of gaining and sacrificing. This is the very first step. और हम आप इस लिस्ट के बाद 1 by 1 इन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने गुडविल का वैल्यूएशन सीखा है, लेकिन जब कोई पार्टनर गेन करता है या कोई सेक्रीफाइस करता है तो उसके लिए कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, बिकॉज जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस गुडविल ऑफ द बिजनेस। तो उसको जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे गुडविल कंपनसेट करवाना है, ये सेकेंड ट्रीटमेंट हम करेंगे। उसके बाद बेटा ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट। हमारी बैलेंस शीट में कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो फिक्टिशियस होते हैं, तो हम बार बार बताते हैं फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मॉनेटरी टर्म्स, जिनको हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल इट इज प्रेजेंट ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये कौन से एसेट्स हैं, इनका क्या ट्रीटमेंट है, हम ये भी सीखेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। आपकी पार्टनरशिप फर्म में कुछ प्रॉफिट और कुछ लॉस दिख रहे होते हैं बैलेंस शीट में। सम टाइम वो एसेट साइड पे दिख रहे होते हैं, सम टाइम वो लाइबिलिटी साइड पे होते हैं। ये होते क्या है बेटा, ये पुराने वो प्रॉफिट होते हैं बिजनेस के जो उन्होंने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, राइट। इसी के साथ हम एक टर्म ले सकते हैं, दैट इज रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व्स। बिजनेस में बहुत सारे आपको पता है फंड्स होते हैं, हम प्रॉफिट का बहुत सारा पोर्शन जो है संभाल के रख लेते हैं कि टू बी यूज्ड इन बिजनेस एट अ लेटर स्टेजेस। तो जब पार्टनरशिप में चेंज हो रहा है तो उन फंड्स का क्या करेंगे जो बिजनेस में पड़े हुए हैं, कोई पुराने प्रॉफिट पड़े हैं या रिजर्व्स पड़े हैं, तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, दैट इज इन दिस स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप इज बेटा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व को आप अलग से भी लिख सकते हैं, उससे क्या रहता है वो हमारा नंबर 5 हो जाएगा पॉइंट, राइट। उसके बाद नंबर स्टेप 6 पे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये क्या होता है बेटा, नाम से क्लियर हो रहा है, हम बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी लिखे होते हैं वो किस वैल्यू पे हम लिखते हैं। हमने पढ़ा है ना कॉस्ट कॉन्सेप्ट 11th में, तो 11th में हमने आपको बताया था कि एसेट विल बी रिकॉर्डेड एट अ वैल्यू ऑन विच इट इज़ एक्वायर्ड, है ना। जिस भी वैल्यू पे हम उसे एक्वायर करते हैं इंक्लूडिंग इस इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग, वो वैल्यू हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। पर क्या उसके बाद उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। अगर आप मार्केट प्राइस देखें तो एसेट और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ में काफ़ी फ़र्क आ गया होता है, तो हम एक हिस्टोरिकल वैल्यू लिख के अपनी बैलेंस शीट को दिखाते रहते हैं। अगर मैं लैंड की बात करूं, अगर आपने 10 साल पहले वो 5 लाख की ली थी तो मेरी बुक्स में तो वो 5 लाख की ही दिखेगी बैलेंस शीट में, लेकिन आज उसका रेट आप जाके मार्केट में पूछ लीजिएगा, डेफिनेटली उसकी जो रेट है वो उतना नहीं होगा, वो इंक्रीज हो गई होगी। तो जब पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो पार्टनर्स कहते हैं कि लेट अस फाइनलाइज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वैल्यूज वंस अगेन, दोबारा से चेक कर लेते हैं, अगर कोई बड़ा है या कम हुआ है तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट कैन बी डन व्हेन द पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ एसेट्स की कीमत बढ़ चुकी होती है जिसमें कि पुराने पार्टनर्स का फ़ायदा होता है, और कुछ की एसेट की वैल्यू गिर चुकी होती है जिसमें पुराने पार्टनर्स को नुकसान होगा। तो वो कहते हैं कि जो भी इनके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस है ना उसका हिसाब किताब भी अभी कर लो, ठीक है, क्योंकि अब पार्टनरशिप तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, नए साल में आगे के टाइम में न्यू वैल्यूएशन हम करेंगे, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप।
After revaluation of assets and liability, the next step is to prepare partners capital account. On the date of reconstitution of partnership, partners के कैपिटल में क्या बैलेंसेस आ रहे हैं वो सारा भी हम रीएडजस्ट करके यहाँ पर चेक करते हैं बाय प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. द नेक्स्ट वन इज पार्टनर्स कैश एंड बैंक अकाउंट. और इस सारे प्रोसेस से हमारे कैश और बैंक अकाउंट के बैलेंसेस पे क्या फ़र्क आता है उसके लिए हम कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे. एंड एट लास्ट वी विल प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट. नई जब पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई और सारी ट्रीटमेंट करने के बाद अब जो हमारी नई बैलेंस शीट है उसमें क्या फिगर्स आ रहे हैं दैट वी विल प्रिपेयर. सो दीज आर इन टोटल 8 स्टेप जो कि हमें क्वेश्चन को करने में और ट्रीटमेंट को समझने में हेल्प करेंगे. राइट तो आज मैं आपको पहला स्टेप बताऊंगी. आपने पहले स्टेप के ही क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, डाउट हो गए तो मुझसे पूछने हैं. ओके. वन इन दिस इज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड द गेनिंग रेशियो. ये हमारा सबसे पहला स्टेप है. जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगी, व्हाटएवर द केसेस, वो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग का है, वो एडमिशन का है, वो रिटायरमेंट का है, डेथ का है, स्टेप यही है. लेकिन इस स्टेप में हम अभी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग वाला केस कर रहे हैं तो मैं उसी की एग्जांपल आपको कोट करूँगी. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो. So when I am talking about sacrificing ratio, तो ये क्या होती है? It is a ratio, right? ये होती तो ratio ही है in which partner is ready to surrender. What word I use? Surrender. बच्चे क्या लिखते हैं? It is a ratio in which partner sacrifice. अगर मैं sacrifice लिख रही हूँ तो यहाँ sacrifice नहीं लिख सकती, तो I have to use some substitute word. The substitute word is surrender. So here it is a ratio in which partner is ready to surrender. क्या surrender कर रहा है बेटा? वो his share of profit, उसके हिस्से का profit in favor of gaining partner. Sacrificing ratio वो ratio होती है जहाँ पर एक पार्टनर अपने हिस्से की जो प्रॉफिट है और उसको सरेंडर कर रहा है गेनिंग पार्टनर के लिए. तो इट इज अ रेशियो इन विच पार्टनर इज रेडी टू सरेंडर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ गेनिंग पार्टनर. अगर हमें इसे निकालना है, व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. This is the formula, right? Old ratio minus new ratio. Old ratio of partners and new ratio जो उनका डिसाइड हुआ है, उन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो this ratio can be calculated. I have written one example here. इसको हम सॉल्व करके आपके सामने देखते हैं. In example we have taken Ram and Shyam are partners sharing profit equally. इसका मतलब उनकी ओल्ड रेशियो क्या हो गई बेटा? ओल्ड रेशियो राम एंड श्याम इक्वल आ गई. ठीक है. नाउ दे वांटेड टू चेंज रेशियो टू 3:1. 3:1 करना चाहते हैं. क्या कर सकते हैं सर? हाँ, इसके लिए देखना पड़ेगा कंसेंट है कि नहीं. तो आगे लिखा है बोथ पार्टनर्स आर कंसेंटेड. दोनों ने कहा कि हाँ जी चेंज कर लेते हैं. तो अगर कहा है तभी चेंज करेंगे. तो हमारे पास न्यू रेशियो आ गई बेटा 3:1. ठीक है. अब इस फॉर्मूले में पुटअप करके देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है. जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें फॉर्मूला पहले जरूर लिखें. ऐसा नहीं सोचना है कि सामने वाले को आता है. सो sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. राइट. तो सबसे पहले राम की निकालते हैं. राम की ओल्ड रेशियो है बेटा 1/2. उसकी नई रेशियो है 3/4. इसी तरह श्याम जो है उसकी ओल्ड रेशियो है 1/2 और उसकी न्यू रेशियो आ गई 1/4. इसको सॉल्व करते हैं
LCM 4 आ गया और फिर हमने इसको सॉल्व किया, आंसर कम्स इन नेगेटिव, राइट। और जब हमने शाम का सॉल्व किया राइट, द आंसर इज 1/4। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन सी वाली है, -1/4 वाली कि 1/4 वाली? सो इन दिस क्वेश्चन द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज श्याम बिकॉज ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस। पहले उसे 1/2 मिलता था, अब उसे 1/4 मिलेगा, राइट। आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर आप सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं और आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब वो सेक्रीफाइसिंग नहीं है, राइट। बट अगर आपने सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया और आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दैट इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो श्याम हमारे हो गए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, द नेम इज श्याम। उसने कितना सेक्रीफाइस किया है, दिस इज द सेक्रीफाइस ही मेड 1/4। तो ये बन गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इज दिस क्लियर? और जितना वो सरेंडर कर रहा है उतना ही गेन करने वाले पार्टनर को मिल रहा है। तो गेनिंग पार्टनर कौन आ गया हमारे पास, राम इज गेनिंग पार्टनर, और राम ने कितना गेन किया बेटा, गेनिंग रेशियो इज राइट। तो गेनिंग रेशियो कम 1/4। इज दिस टॉपिक क्लियर टू यू? इन केस यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क मी टुमारो इन द क्लास। और ये जो वीडियोस हैं बेटा, इसके बेसिस पे आज आपने जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के फर्स्ट स्टेप के क्वेश्चंस हैं वो पहले इलिस्ट्रेशन प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद हम बैक एक्सरसाइज करनी है।